Glory to God. So we welcome you for the third day of this prayer and fasting combined with the Sunday service, praising and glorifying the name of our Lord and our Savior, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए, उसके नाम को हालेलुया कहते हुए, प्रेज करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसकी जय जयकार करते हुए हम इस रविवार के सभा में इकट्ठा हुए हैं. ग्लोरी टू गॉड. सो लेट्स प्रे इन टंग्स फॉर फ्यू मिनट्स. अन्य भाषाओं में कुछ समय के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ जोड़ते हैं. जिन चीजों को परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं, शायद वो आप नहीं देख सकते, वो अब के लिए, मे बी इट्स फॉर टेम्पररी, but when I am seeing you people growing in the plan and purposes of God, that is not temporary. That is very much foundational for your life on this earth and also for the life which Yeshua has been preparing for each one of us, which is to be with the Father, the Son, and the Holy Spirit for eternity. Hallelujah. So let's all pray in the Spirit. थोड़े समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, मे बी इट्स 50. लेट्स ऑल स्टार्ट प्रेइंग इन द स्पिरिट. हालेलुया. अगर आप अनम्यूट करके प्रार्थना करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट. ग्लोरी टू गॉड. सो लेट्स ऑल कम इनटू अग्रीमेंट एंड यूनिटी. जो शस्त्र परमेश्वर ने हमें दिया है, जो आत्मिक गिफ्ट्स परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उसे इस्तेमाल करते हुए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे. ग्लोरी टू गॉड. थैंक यू लॉर्ड जीसस. Thank you, precious Master, King of Kings and Lord of Lords. We worship you. We exalt your name, precious Jesus. Yes, precious Lord, we connect to the Holy Spirit right now in the name of Yeshua. We surrender our lives into your hands, Master. Yes, precious Holy Spirit, guide us and instruct us into your perfect will, Lord. Let's all close our eyes and just concentrate on worshiping him. अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ अपने आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट करते हुए अन्य भाषाओं में प्रेयर कीजिए. लसियमाला हाना दियाना तहुम तरबदीरिबे रोजियालामाना हाना बियांते एलिमोहोट सेकेंते. You need to learn to rest in the presence of God. You need to learn to relax in the presence of God. Leaving all your burdens, your thoughts, your heaviness, everything, you leave it aside when you enter the presence of God. You should feel much lighter and happy in the presence of God. Thank you, Master. Lenoto rahirebina senderiyade. Kelibo manananandya tahilabon davatiya labenya sereyado. Say to the Lord in tongues. जिंदा खुदावन की आराधना आत्मा और सच्चाई में कीजिए. हालेलुया. Sing to him in tongues. Hey balomona narandaya hey alabosire de alarabana barende. Precious Master, when you are with us, Lord Jesus, who can be against us, Master? That your righteous hand is upon your children, Lord. That you have kept them protected and safe. As we come into your sanctuary, Master, where your presence is exceedingly abundant, Master. We want to dwell in that presence all the days of our lives. Never wanting to come out of it, Master, but want to see ourselves immersed in the presence of the Most High God. The time that you may pour your heart in the presence of the Most High God. Not taking your concerns and worries to man, but taking it to the Creator, taking it to the King of Kings and Lord of Lords, bringing your concerns in the courtroom of heaven. Oh,
Be persistent in your prayer, says the Lord God. Be persistent in what you're doing. Persistency is the key to the answers for every prayer that a man has. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Master. Hallelujah, hallelujah. एक व्यक्ति होता है जो उस मनुष्य का दोस्त होता है. रात के समय पर वो दरवाजा ठकठकाकर कहता है कि आई हैव कम फ्रॉम अ ट्रैवल एंड आई वांट ब्रेड, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो. और ये व्यक्ति अपने परिवार के साथ सोया हुआ होता है. इट इज अ मिडनाइट टाइम एंड दिस पर्सन इज गेटिंग अनॉयड. ये बार बार दरवाजे पर दस्तक देकर मेरे परिवार की और मेरी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है, पर ये मेरा दोस्त है. और फिर से बार बार ये दरवाजा खटखटाते हुए इस व्यक्ति की नींद को डिस्टर्ब कर रहा है. अंत में ये व्यक्ति जो है फेड अप होकर कहता है, इट्स बेटर आई वेक अप एंड गिव हिम व्हाट ही वांट्स. एक बार इसको देकर मैं इसको चलता करूं. ऐसे सोचकर, ये इसका दोस्त है इसलिए नहीं, बल्कि जो परसिस्टेंटली दरवाजे पर जो नॉक कर रहा है, उसको जो चीज वो मांग रहा है उसको देकर उसे वहां से भगाना चाहता था. सो परमेश्वर यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को इस प्रकार इस्तेमाल किया है. जब आप निरंतर हो प्रार्थना में, एक और वचन हम देखते हैं लूक की किताब में, जहां पर एक स्त्री उस न्यायाधीश के दरवाजे पर हमेशा दस्तक देती है कि मुझे इस चीज का न्याय चाहिए. और अंत में वो जज जो होता है वो कहता है, मैंने इतने सारे लोग देखे हैं, पर ये स्त्री जो है ये निरंतर आकर मुझे हर रोज परेशान करती है कि मेरे इस चीज को मुझे न्याय दीजिए. तो मैं तो एक जगह पर मैं न्यायाधीश हूँ. अगर आप परमेश्वर के न्याय के लिए आप अगर प्रार्थना करते हो, सोच कर देखिए, परसिस्टेंसी, निरंतर. हालेलुया. जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हो तो ये दो चीजें परमेश्वर ने अब मुझे याद दिलाई जब अब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे. परसिस्टेंसी. सो एज वी वर वर्शिपिंग, जैसे हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे थे, उस समय पर परमेश्वर ने इस वचन को मुझे स्मरण दिलाया कि हमें परसिस्टेंट रहना है. हालेलुया. हमें जिद्दी बनना है. वी हैव टू बी शोइंग आवर स्टबर्ननेस इन आवर प्रेयर लाइफ. कुछ लोगों में एक कैरेक्टर होता है, वो बहुत जिद्दी होते हैं, एक्चुअली जिद्दी होते हैं, राइट. पर जैसे इन लोगों को हम डायरेक्ट करते हैं अच्छे चीजों के लिए, तब ये लोग उनके जो कैरेक्टर है, जो स्टबर्ननेस है, उसे परमेश्वर के राज्य के लिए एक फलदायी पेड़ के समान उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. दे कैन बिकम अ फ्रूटफुल ट्री फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. सो डाइवर्ट योर नेगेटिव कैरेक्टर्स टू द positive work of God. May your stubbornness be used more effectively when it comes to persistency in your prayer. Hallelujah. कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? To say is when you worship in the presence of God, God is going to give you that Shekinah glory. Your face is going to radiate. Hallelujah. जो आंसू परमेश्वर के उपस्थिति में आप जो अश्रु के साथ प्रार्थना करते हो, उस आंसू के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, that becomes a cleansing to your face. Hallelujah. वही आपको क्या करता है? क्लेंस करता है, आपको शुद्ध रखता है. Hallelujah. Glory to God. So what all time you are spending in the presence of God, that will never go waste. Hallelujah. Today's word is such a powerful word. We have not even come to the word. उस वचन तक हम अभी आए भी नहीं है. इतना आशीषित वो वचन है जो दिसंबर के महीने में परमेश्वर ने मुझे इस नए साल के लिए एक्चुअली ये वर्स दिया था. और इतने सारे वचन को कंपाइल करते करते हम लोग ऑलमोस्ट 5 एपिसोड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, राइट. और मैंने ये वचन इसलिए सेपरेटली रखा था क्योंकि ये एंटायर चैप्टर जो है परमेश्वर ने मुझे आशीष के रूप में दिया था. हालेलुया. When I was sleeping, in the middle of the night, एक ड्रीम चल ही रहा था. I was in a dream and suddenly something paused there and it was like a voice telling to me Psalms 34. ये 2-3 बार हुआ.
तो जैसे कि हम एक कैलेंडर में एक रिमाइंडर को सेट करते हैं, उस प्रकार कोई मुझे याद दिला रहा है Psalms 34। तो मुझे मेरे स्पिरिट में ये पता था कि ये जो वचन मैंने अभी तक जो अपने सेविकाएं में है इसमें अभी तक मैंने इंक्लूड नहीं किया है। आई न्यू दैट, बट आई थॉट because all other scriptures were coming and I felt it more, edifying. So I gave priority to that word more, keeping this word aside. But instantly the Holy Spirit reminded me this word in the middle of the night, even in a dream, when which was the dream is going on, but my spirit is awakened. Whenever we sleep also, our spirit is not sleeping, isn't it? हमारी रूह जो है, हमारा स्पिरिट जो है वो कभी नहीं सोता, वो जगा हुआ होता है। और ये वचन एको हो रहा है। सो कल मैंने शेयर किया अपने परिवार के साथ दैट दिस इज द वर्ड विच गॉड इज रिमाइंडिंग, एंड सो यस्टरडे आई सैट बैक एंड आई स्टार्टेड टू मेडिटेट ऑन दैट वर्ड। सो ये वचन आपको इस प्रकार तैयार करेगा, या इस प्रकार आपके विश्वास को जो है जोड़ेगा, मजबूत करेगा, कि आने वाले समय आप इस वचन के अनुसार विजयी होने पाए। You become victorious. Hallelujah. So let's go to the book of Psalms 34. भजन संहिता के वचन में जाते 34 के वचन में। सो ये काफी बड़ा अध्याय है, पर हर वचन को हम वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते हुए थोड़े वचनों को जरूर पढ़ेंगे, और उसके साथ ही पवित्र आत्मा जिस प्रकार हमें प्रेरणा देता है इस वचन को समझने के लिए, अपने आप को उसको समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा से ही हम अगुवाई लेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सबसे पहले इस वचन के बैकग्राउंड को जानेंगे, राइट। सो दिस वर्ड इज नॉट एन ऑर्डिनरी वर्ड बिलवर्ड, ये बहुत ही एक अचंभित करने वाला एक वचन है। इनफैक्ट हम ऐसे कह सकते हैं राजा दावीद ही ऐसा व्यक्ति है जो बहुत एक्सेप्शनली चीजें करता है। मतलब बाइबल में कुछ नियम दिए हैं या कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हैं, बहुत सी चीजें वो फॉलो ना करते हुए भी परमेश्वर के हृदय के काफी करीब माना जाता है। Hallelujah. So he is such kind of a king where we see he is a very exceptional behavior carrying person. Hallelujah. मतलब एक बहुत ही अलग तरीके से उसकी जिंदगी में चीजें होती है, फिर भी उन सारी चीजों में वो जयवंत है। और उसी के लिए ये वचन हम आज भी पढ़ते हैं, हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। Hallelujah. Is this word helping you all? Is this word building you people? Amen. So Sister Monica will be assisting us in Hindi, reading Psalms 34. Whenever it is required, I would ask her to read the verses. Amen. So let's understand the background of this message. So this Psalm 34 is from the cave Adullam. Hallelujah. ये एक केव के बारे में है जिसका नाम है अदुल्लाम। ये गुफा है जिसको हिब्रू में ये शब्द अदुल्लाम का मतलब होता है हाइडिंग प्लेस, छिपने की जगह। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं, आप और मैं, जहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में छुपे हुए हैं। वी आर इन द अडुल्लाम केव। व्हाई? बिकॉज गॉड इज वर्किंग ओवर आवर लाइव्स। कल मैंने बहुत एक सुंदर साक्षी उपवास प्रार्थना में मैंने शेयर की थी कि एक ऐसे समय था जहां पर हमें ये ऑप्शंस थे कि हम दुनिया के जैसे हमारी जिंदगियों को बिताए, या उनकी तरह जो है हंसी मजाक करे या एंजॉय करे लाइफ को। और परमेश्वर उस समय हमारी जिंदगियों पर कार्य कर रहे थे। जिस जिस भाग को हमने चुना है या जिस पोषण को हमने अपनाया है वो अलौकिक है, उसकी तुलना दुनिया की इन टेम्पररी ब्लेसिंग्स के साथ नहीं की जा सकती। एंड ये सारे प्रोसेस होते हुए उस वेटिंग पीरियड में जाने के बाद ही 2020 में एडोनाई किंगडम प्लांटर्स का बर्थ हुआ। हालेलुया। अगर हम ये सारे क्षण, ये सारे पल और ये सारा समय अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में ना देते तो आज ये सेविकाई नहीं होती। कहीं ना कहीं हमें दाम चुकाना पड़ा, एंड दैट इज मैंडेटरी। कोई भी प्रभु यीशु मसीह में दाम चुकाए बिना नहीं आ सकता। एवरीवन हैज अ sacrificial life. Maybe your sacrifice is different from my sacrifice, but sacrifice is accepted by the Lord, and that pleases God. Amen. So none of us come waving hands, but whenever we come in the presence of God, we come with a sacrificial heart. Hallelujah. So this incident about Psalms 34 is talking about the
the situation of King David when he is in the cave of Adullam. आप सोच कर देखिए, एक केव में रहते हुए एक व्यक्ति परमेश्वर की इतनी अलौकिक स्तुति कैसे कर सकता है। हालेलुया। ऐसे दौर से गुजरते हुए जहां पर आप सोच कर देखिए, केव में ऐसी कोई भी फैसिलिटीज नहीं होते जो आपको सस्टेन कर सके, isn't it? Because it's an hiding place. It's like, you have run away from your enemies, escaping life and death situation, and now you have a rescue in this cave, and you don't have anything to sustain you, but your spirit is still worshiping Yahweh. Isn't that amazing? Hallelujah. So in your brokenness comes out the best of your life. हमेशा से ही देखिएगा, जब आप टूटे हुए अवस्था में होते हो और यू आर टू द वर्ज एंड नाउ यू नो लॉर्ड, विदाउट यू आई कांट इवन टेक वन स्टेप, उसी क्षण में जो है आपके मिरेकल्स मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं. सो go to that deep intimacy with the Lord and allow yourself to be broken, and that is the time when everything comes as a breakthrough. Rather, everything comes as a breakthrough for people. So this word is an ultimate example of what I'm saying. Hallelujah. ये वचन ये कहता है कि राजा दावीद, उसने अपने आप को एक पागल व्यक्ति के समान दर्शाया है. इस भजन संहिता में ऐसे एक हिस्ट्री है इसके पीछे कि जहां पर किंग डेविड इज प्रिटेंडिंग टू बी मैड बिफोर अबीमेलेक, राइट. सो अबीमेलेक की एक टाइटल है उस समय पर, जो एक अथॉरिटी का टाइटल है, एक अधिकार का टाइटल है. अबीमेलेक के नाम नहीं है, बट इट्स एन टाइटल, राइट. As we are reading the word of God, at the same time I try to teach you also. आपको मैं सिखाने की भी कोशिश करती हूँ ताकि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको समझ में आए कि इस शब्द का मीनिंग क्या होता है. हालेलुया. So here David is acting, he is pretending to be mad so that he may escape. हालेलुया. So ये इस प्रकार की जो चीज दावीद ने की है ये काफी एक्सेप्शनल है. कहीं पर भी हम किसी को ऐसी प्रेरणा नहीं देते कि आप इस प्रकार कीजिएगा, because David has done certain things because he is in that position or that kind of a situation where he thought it might be right for him to do it. Hallelujah. But we today, being the children of God, we would never want to follow this kind of a pattern. But what good we are taking from this Psalms 34 is the attitude of praise, the attitude of worship. Hallelujah. So he is a king who has been taking the seat of Saul in the coming days, who has been already declared as a king. अब सोच कर देखिए, उस पे एक भविष्यवाणी हो चुकी है और वो आने वाले समय में इजरायली लोगों पर राजगद्दी संभालने के लिए अपने आप को जो है प्रिपेयर कर रहा है, पर एक जगह से दूसरे जगह पर भागता जा रहा है अपने प्राणों को बचाने के लिए. This is the situation where King David is running, but he knows for sure that he's been ordained. 3 times he was being ordained as a king, right? 3 बार उसे अभिषेक किया गया है. और जो किंग सॉल है उसका शत्रु बना हुआ है, वो नहीं चाहता कि राजा दावीद ये आगे चल के इस सिंहासन को या इस राजगद्दी को संभाले. And knowing that from God it is already approved, ये ऑलरेडी प्रोफेसी हो चुकी है, पर इसे हासिल करने के लिए डेविड इज स्ट्रगलिंग टू लाइफ एंड डेथ. हालेलुया. जो परमेश्वर की ओर से अप्रूव हो चुका है या एक आशीष का कारण उसके लिए थोड़े समय में आने वाला है, उससे प्राप्त करने के लिए भी दावीद जो है अपने प्राणों को बचाता हुआ ये अदुल्लाम गुफा में आ पहुंचा है. कितने लोग वचन को समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग? हाउ मेनी ऑफ यू आर रिलेटिंग दिस वर्ड? आमेन. So the more receptive you are to the word of God, the more you will receive. Amen. So यहाँ पर हम देखते हैं दावीद किस प्रकार इस गुफा तक पहुंच गया. Right? We see that David has somehow, pretended to act like mad person in the presence of Abimelech, and somehow he has reached this cave. Hallelujah. So in those time, Abimelech was a title given to the rulers among the Philistines. Right? The ruler's name was Akish. जो राजा वहां पर था उसका नाम Akish है, पर
जो टाइटल उसको दिया गया है वो अबीमेलेक है। इस राजा के समीप जब दावीद को लेकर आए थे तो उसने एक मूर्ख व्यक्ति के समान एक्ट करने की कोशिश की ताकि ये उसे छोड़ दे। ये किस वजह से हुआ है, ये आप पहले सैमुएल 21वीं अध्याय से 10 से लेकर 22 तक आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 21 वर्सेस 10 to 22, यू कैन रीड इट एंड यू विल अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड क्यों ऐसे हुआ है, राइट? ग्लोरी टू गॉड। सो हियर द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स कॉलिंग गॉड्स पीपल टू प्रेज। इस समय पर जब दावीद अपने प्राणों को बचाते हुए इस अदुल्लम केव में आ पहुंचा है, उस परिस्थिति में वो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए शुरू कर देता है। In fact, David, the King David, is specially known for this kind of an attitude. I think which no one has in the entire Bible. Such kind of a unique personality that no matter whatever is happening, he is completely trying to connect his spirit with the spirit of Yahweh. हालेलुया। ये विशेष चरित्र को हम दावीद राजा की जिंदगी से सीखते हैं। ये ऐसा चरित्र है कि जो किसी भी परिस्थिति में या अवस्था में, नो मैटर व्हाट, राइट, ही डजंट कंसिडर इट एज एन हिंड्रेंस। जैसे हम सोचते हैं ना कि अभी मुझे प्रेज एंड वर्शिप करना है तो मेरे लिए ये एनवायरनमेंट होना जरूरी है, वैसे वो नहीं सोचता। ही इज थिंकिंग दैट नो मैटर व्हाट, instantly my spirit can be connected. This is a very good character, beloved. ये बहुत ही एक सीख लेने वाली ऐसी एक एग्जाम्पल है जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में कनेक्ट करने के लिए हमें कोई सिचुएशन प्रेरित ना करे, बल्कि हमारी आत्मा हमेशा से परमेश्वर की आत्मा से जुड़ी रहे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। So the word of God is saying that he being in this cave, right? And he is writing something very, very significant. Hallelujah. The word of God is saying that an overflowing praise is coming out of from his mouth. Not in a room which is air conditioned, not a very comfort cozy couch, not a plate kept with tea and coffee and snacks. No, not that kind of an environment. But this environment is the environment of hiding place, adulam. Adulam in Hebrew means a hiding place, जहां पर अपने प्राणों को बचाकर राजा दावीद जो है छुपा हुआ है, और इस समय पर उसके मुख से ये अलौकिक स्तुति आराधना निकल रही है। Hallelujah. So in the month of December, when the Lord gave me this word, I was very excited to read this word. But this being an entire complete different topic, I couldn't club it with the regular messages. So today we are dedicating the entire Sunday service only for this word. Hallelujah, glory to God. So here we see the King David is saying, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Hallelujah. यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा दावीद जो है अपने परमेश्वर यहोवा को प्रशंसा देता है। उसने थोड़े समय पहले ही अपने आप को मूर्ख के समान जताते हुए एक राजा के समीप ऐसे प्रिटेंड किया, और वहां से छुटकारा पाने के बाद वो इस केव में है। और यहाँ पर वो कहता है कि मेरी मुख से अनंत परमेश्वर के नाम के लिए महिमा निकलते, कंटिन्यूली from my mouth. Hallelujah. And he's telling, my soul is going to boast in the Lord. मेरे किए गए कार्य, या मैंने अभी बहुत एक चालाकी से मैंने मूर्ख के समान जो मैंने एक्टिंग की और अपने आप को बचाते हुए मैं अदुल्लाम की गुहा में आ चुका हूँ, इस चालाकी के लिए मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि परमेश्वर की महिमा में। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कई बार परमेश्वर हमें एक क्लवरनेस देते हैं या विटीनेस देते हैं कि उस समय पर हम विजडम को यूज करते हुए उस चीज से हम बाहर निकल जाए। कई बार हमें ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, और उसी प्रकार किंग डेविड इज यूजिंग his mind here, his wisdom here, to escape from that king and hide himself in this cave. Hallelujah. So here he is boasting in Lord, not in his own
decision of pretending to be a mad person, but boasting in the Lord. परमेश्वर के नाम पर हमें क्या करना है? उस पे हमें गर्व करना है. Not in the things that we do. Hallelujah. Glory to God. Thank you, precious Master. So here we see that the testimony of the delivered one. 3 to 7. This cave has become a significant place for David to release his testimony. David did not wait that when he will be enthroned and when he will be seated on the throne, my people will call a big party and there will be big loudspeakers and then I will come and release my testimony. No, he did not wait it. In fact, he used the situation of this hiding place, इस छुपे हुए स्थान को, इस अदुलाम की गुफा को उसने अपने साक्षी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया. He turned it to be a stage. कितने लोग समझ पा रहे इस वचन को? जहां पर आज आप छुपे हुए हो, परमेश्वर आप पे कार्य कर रहा है, यही स्थान आपके टेस्टिमनी के लिए प्लेटफॉर्म बनने वाला है. हालेलुया. सो ऑल दीज इयर्स, आमेन. मैं कई बार ये वचन, ये इस चीज को मैं दोहराती हूँ. कई लोगों ने जो प्रोफेसीज की थी, उन्होंने प्रश्न भी किया था, क्यों आपने अभी तक सेविकाई नहीं शुरू की? उस समय पर हम जरूर रोते थे, बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट 8 and 9 years God was working over our lives. परमेश्वर हम पर कार्य कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे. पर 2020 में जो परमेश्वर ने अलौकिक तरीके से एडोनाई किंगडम प्लांटर्स का नाम जो भी परमेश्वर ने दिया, उस समय से हम जान गए कि जिस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस अदुलाम केव के अंदर छुपे हुए थे, हाइडिंग प्लेस में थे, वो व्यर्थ नहीं गया. इट विल नेवर बी वेस्टेड. One single thing that you have done for the glory of God, that time that you have spent where God was preparing you for something very greater, which your mind may not understand today. This Adulam cave became that platform for a greater testimony for King David. Hallelujah. When a person is connected to the Spirit of God, any situation in his life, no matter may it be a stumbling block, that stumbling block will be converted into a stepping stone, beloved. Hallelujah. इस चीज को हमारी जिंदगी में हमने होते हुए देखा है. And that is the anointing that we carry is released over your life. Amen. वही अभिषेक जो परमेश्वर ने हम पे डाला है, वो आज हम आप पे उंडेलते हैं, ताकि उसी सामर्थ के साथ आप इस वचन के आशीष को प्राप्त करने पाए. Hallelujah. Glory to God. So let's understand the word. The word of God says, "Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears." They looked to me. They looked to him and were radiant. Wow. And their faces were not ashamed. This poor man cried out, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. Hallelujah. Let's read 3 to 7 in Hindi. Sister Monica will assist us. 3 से 7 हम हिंदी में पढ़ेंगे. हालेलुया. मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें. मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया. और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया. हालेलुया. इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया. हालेलुया. Hallelujah. हिंदी में तो काफी इफेक्टिव है. Isn't that powerful? मुंह क्या नहीं होने दिया सिस्टर? मुंह काला नहीं होने दिया. काला नहीं होने दिया. सो मैंने ऐसे ही टेस्टिमनी शेयर किया था, राइट, स्टार्टिंग में, कि माय फेस बिकेम रेडिएंट. हालेलुया. एंड द वर्ड इज आल्सो हियर. कब होता है आपका फेस रेडिएंट? कब आपका मुंह काला नहीं होता? जब आप परमेश्वर के अलौकिक उजाले के और अपने मुख को उठाते हो. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. द सन ऑफ राइचियसनेस. आमेन. हालेलुया. This is so powerful. We need to soak the word in our hearts. Amen. So the word of God says that they looked to him and were radiant. Their faces were not ashamed.
when you see the glorious face of your Savior, of your God, your faces will never be ashamed. God is taking the responsibility to uplift your face in the presence of your enemies. इसीलिए कभी भी ये प्रार्थना मत कीजिए परमेश्वर मेरे शत्रुओं को नाश कर दीजिए. इनफैक्ट आप ये प्रार्थना कीजिए परमेश्वर मेरे शत्रुओं के बीच में मेरे लिए आप टेबल लगाइए. Amen. In the presence of my enemies, you shall lay a table for me, so that the enemies should know that the Lord God, the righteous hand of our Yeshua is over our heads. उन्हें पता होना चाहिए कि जब हम टेस्टिमनी देते हैं या हम विक्टोरियस होते हैं, ये सारा चीज जो है उन लोगों को एक एग्जाम्पल के समान देखने के लिए परमेश्वर रखते हैं. एनिमीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एक व्यक्ति के जिंदगी में कितने लेवल के शत्रु है, उसी पर से ही उसकी जो है क्वालिटी या उसका अस्तित्व या उसका वेटेज जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के शत्रु लोकल गुंडे हैं उसी एरिया के, तो हम सोचेंगे कि ये लोकल एरिया पे कार्य करता है. अगर उससे बढ़कर स्टेट लेवल पे अगर कोई शत्रु है तो ये स्टेट लेवल पे है, अगर नेशनल लेवल पे है तो नेशनल लेवल पे है. पर जो आत्मिक बच्चे हैं परमेश्वर के, इनका युद्ध जो है किसके साथ है? अगेंस्ट द पावर एंड प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस. मतलब इन सबसे बढ़कर उच्च स्थान पर. वी डोंट फाइट विथ लोकल मेंटालिटी पीपल और एवरेज मेंटालिटी पीपल. नहीं, हमारा युद्ध उनके साथ है ही नहीं. पर हमारा युद्ध जो है अंधकार की इस दुष्ट आत्मा के खिलाफ, जो प्रिंसिपैलिटीज होती है उसके खिलाफ है. सो हम हमेशा से लोकल फाइट्स में कभी भी नहीं आना है हमें. दैट इज ऑल फॉर द पीपल ऑफ दिस अर्थ, जो अपने आप को संतुष्ट समझते, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट वो जीत जाते हैं तो दे फील ओ वी हैव डन समथिंग पावरफुल. बट फॉर अ चाइल्ड ऑफ गॉड दे आर नॉट इन द फाइट बट दे आर इन द वॉरफेयर, राइट. लड़ाई झगड़े के और युद्ध में काफी अंतर होता है. कितने लोग समझ पा रहे हैं? युद्ध जो होता है और लड़ाई झगड़ा जो एक व्यक्ति करता है, इन दोनों में साम्यता नहीं है. योद्धा युद्ध लड़ता है और एक व्यक्ति जो निकम्मा होता है वो क्या करता है? स्ट्रीट में जाके लड़ता है, isn't it? क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं होता तो अपने आप को फाइट्स में ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि समय तो कैसे ना गंवाना ही है ना उसने. तो योद्धा जो अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करता है, जैसे परमेश्वर की संतान अपने आप को इस जिंदगी के जो राह में है युद्ध समर्पित करते हुए योद्धा के समान लड़ता है. Hallelujah. So never underestimate your challenges because they are not lesser than any war. Hallelujah. Glory to God. So this word is so powerful that he is magnifying the Lord Yeshua. और दाविद अपने आप को ही नहीं कह रहा है magnify, but he is saying that everyone magnify. Can you read the verse 3 once again, sister? तीसरा वचन एक बार हिंदी में पढ़ेंगे फिर से. जी. मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें. So दाविद क्या कह रहा है यहाँ पर? In the cave, his father's household is coming to meet him. Later on in the verses we'll see क्या situation है वहां पर. वो पर्सनल प्रेयर नहीं कर रहा है. He is not personally praising. इस तरह वो कह रहा है यहाँ पर हम सब मिलकर मैग्निफाई करें परमेश्वर के नाम को. हालेलुया. ये कितना यूनिक बात है, isn't it? अब सोच कर देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन अ ब्रोकननेस एंड आई एम क्राइंग. पहले मेरे लिए मेरे अपनी चुनौतियां बहुत ज्यादा है. मैं पर्सनल प्रेयर में स्ट्रगल कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे आंसर मिल जाए और परमेश्वर की आत्मा से मैं कनेक्ट हो जाऊं. ये करते हुए लो फिर जाकर आप किसी और को प्रभु यीशु के बारे में बताना. ऐसे ही सोचते हैं लोग. दिस इज द local mentality of people. This is the understanding of a common man, because they want to see you fitting into their standards, but that is not the biblical standard, beloved. वो ये चाहते हैं कि दुनिया के स्टैंडर्ड में आप जाकर बैठ जाओ, पर आत्मिक रीति में या बाइबल के अनुसार ये स्टैंडर्ड हमारे लिए लागू नहीं होता. यहाँ पर हम कितने ब्रोकन हैं या कितने टूटे हुए हैं, ये हमें परमेश्वर की प्रशंसा करने से नहीं रोकता. हालांकि ये अवस्था हमारे लिए बहुत फीजिबल बन जाती है, बहुत अच्छी बन जाती है
एक हरियाली के समान बन जाती है, ताकि उस समय पर हमारे मुख से परमेश्वर के नाम के लिए अलौकिक प्रशंसा निकलने पाए। और दावीद यहाँ पर चुप नहीं बैठ रहा, ये कह रहा है लेट अस ऑल मैग्निफाई, चलो हम सब मिलकर परमेश्वर की, यहोवा की स्तुति करें। सोचकर देखिए, अदुल्लाम केव में एक व्यक्ति कह रहा है लेट्स ऑल वर्शिप द लॉर्ड। हाउ डज द स्पिरिट कम, ये आत्मा कैसी आती है, ये अवस्था एक मनुष्य में कैसे निर्माण होती है, ये मैं सोच रही थी। आई वाज थिंकिंग लॉर्ड, हाउ इज दैट पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन फॉरगेट एवरीथिंग एंड ओनली थिंक टू वर्शिप यू इवन इन सच एंड डेडली सिचुएशन। हालेलुया। यही होता है परमेश्वर का शालोम पीस। दिस इज कॉल्ड द पीस फ्रॉम यशुआ। हालेलुया। शालोम मतलब पीस, इसका मतलब कितने सारे आवाजें आपके कानों में आ रही है, डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, पर उस क्षण भी परमेश्वर की उपस्थिति आपको अलौकिक पवित्र आत्मा से भरती है। हम सभी को उस स्थान में आना है। We all should come to that place where, how much ever we pricked or troubled or, disturbed, but the presence of God is not going to depart us. परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति हमें छोड़कर नहीं जा सकती। Hallelujah. Glory to God. Isn't that powerful? So David is asking all of them who had come to visit him that point of time. He's telling, let's all exalt his name together. Not alone me. I have run away from from the ruler Abimelech. मैं तो भाग कर आ चुका हूँ उस अदुल्लाम गुहा में। परमेश्वर ने मेरी जान को बचा लिया है। इंस्टेंटली मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हूँ। और मैं अकेला ही नहीं, तो सारे आप लोग जो मुझे मिलने यहाँ पर आए हो, सभी मिलकर परमेश्वर की नाम को मैग्निफाई करें। आप सोच कर देखिए, परमेश्वर का नाम, इट्स ऑलरेडी अ बिग ग्रेट नेम, पर एक मनुष्य जब परमेश्वर के नाम को मैग्निफाई करता है, इसका मतलब परमेश्वर के नाम को प्रथम स्थान देते हुए उसके नाम को ऊंचा उठाता है। God is not waiting for you to magnify his name. His name is already magnified. He is a magnificent God, no doubt. But when you take that opportunity, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, तब आप उस व्यक्ति के समान बन जाते हो जो उस सेनाधीश परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए एक पात्र बन चुका है। God is in search of such vessels where they will become a dedicated instrument to magnify his name. ये अंत के समय में परमेश्वर बड़े प्लेटफॉर्म या लाइक great kind of infrastructure or mic and sound systems, this is not what God is looking. He is looking for that person who will become that instrument to magnify his name in the midst of any situation, that he is dedicated. Dedicate कर देना। अब देखते हैं ना, अगर आप किचन में काम करते हो तो जिस वेसल में आप मिल्क को बॉईल करते हो, उसमें क्या आप करीज बनाते हो? We don't do it, right? Because we all are sisters, we can relate it very well. जिस वेसल में आप मिल्क बॉईल करते हो वो मिल्क के लिए होता है, जिसमें आप चाय बनाते हो चाय के लिए होता है, आप जिसमें सब्जी बनाते हो सब्जी के लिए होता है, आप मिक्स नहीं करते। उसी प्रकार अंत के समय में परमेश्वर ऐसे लोगों को तैयार करेगा जो सिर्फ और सिर्फ उसके नाम को मैग्निफाई करेगा, उसके नाम को बड़ा करेगा। ग्रेटर मैग्निफाइंग द नेम ऑफ द लॉर्ड शैल हैपन थ्रू हिज पीपल। हालेलुया। मुझे ये अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि वो आप लोग हो। यू ऑलरेडी नो दैट हु यू आर इन द लॉर्ड। Amen. Hallelujah. So through our lives, the name of Yeshua is going to be magnified in a greater measure. No matter what situation we go through, the situation is going to become so powerful for us that we are going to magnify his name more than yesterday. कल जितना मैंने परमेश्वर की प्रशंसा की या आराधना की या उसके नाम को ऊंचा उठाया, आज उससे 100 गुना ज्यादा मैं करूंगी। This is going to be my life from today onwards. Hallelujah. Glory to God. I'm not going to wait till I'm going to the place of my testimony, but before I'm placed there, I will start my faith life glorifying him always. Amen. Thank you, Lord Jesus. So the word of God is saying, I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. सारे मेरे भय से। अब सोच कर देखिए, दावीद ये ऐसे क्षण से गुजर रहा था जहां पर उसकी प्राण पर आ बनी थी। He would have lost his life anytime, but he was completely under the protection of Yahweh. जिसके सर पर परमेश्वर का हाथ होता है,
उसे कोई भी नाश नहीं कर सकता। इसलिए दावीद इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है, माई गॉड हैज डिलीवर्ड मी फ्रॉम ऑल फियर्स। एक व्यक्ति को जैसे ही वो उठते हैं सुबह से, उनके मन में हजारों प्रश्न आते हैं, हजारों चीजों की भय आते हैं। दैट इज वेरी ट्रू। There is no full stop to these kind of fears. It can generate and birth anytime, but it is under the control of that man to keep on declaring that my God has delivered me from all these fears. Who else can testify more better than this word? I myself, because I came out of all these things gradually, right? This kind of fears were engrossing me many a times, and the Lord delivered me, set me free, liberated me from all these things. And that's why I can declare this word boldly. The word of God says, he has delivered me from all fears. Many a times many people call me and ask me to pray, and their situations are so critical and so overwhelming. And whenever I connect to the Spirit, the Lord reminds me, when you went through these challenges, did you ever stay in that situations of darkness? Were you not bought out of it victoriously? Same shall be the portion of this person also. They will not be in the darkness anymore, but the Lord is mindful to deliver them out of that shackles. And it shall happen. When the Lord did not keep me in darkness, he will not keep you also, because I serve the same God whom you serve. Hallelujah. So we know for sure, when I never remained in that fears, when I was not in that trauma or that anxiety and that depression, God removed me out of it. Today he has kept me to release this word over you all. Surely when you are in that challenging situation, even you will not remain in it, you will come out of it victoriously. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. And that is why I can say boldly, and this shall be your testimony in the name of my Lord and my Savior Yeshua, whom you serve. You will be delivered from all fears, and you will have a testimony. When you look upon to him, your faces will be radiant, and every spirit of shame and disgrace shall be cut off from you and your generation. Hallelujah. That is why when you cry unto the Lord, yesterday when we heard a very good thing, that the children of God has a very good accessibility to cry unto the Lord. परमेश्वर के जन परमेश्वर के नाम को पुकार सकते हैं। कल ब्रदर लवीन ने मुझे एक क्लिपिंग दिखाया जो एक एक्टर का था। ये जो परमेश्वर के जन होते हैं, जो राइचस होते हैं, वो तकलीफ से होकर गुजरते हैं, पर परमेश्वर उनका हाथ कभी भी नहीं छोड़ता। पर दूसरे एक और एग्जाम्पल है, जो ऐसे लोग होते हैं जो हर कंफर्ट में होते हैं, रिचेस में होते हैं, पर उन लोगों का हाथ परमेश्वर कभी नहीं पकड़ता। So this is a real evident example in the world. Amen. So when I heard this, that message yesterday which we were preaching, Psalm 73, उसी के लिए completely एक title के समान वो एक message था, right? So what I mean to say here is, when you cry unto the Lord, he is going to answer you and save you from all troubles. The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. इन सारी चीजों के लिए स्वर्गदूत की जो मिनिस्ट्री है वो रिलीज की जाती है। यू मे नॉट सी इट विथ योर नेचुरल आइज बिलवर्ड। कई बार ऐसे होता है कि हमारे नेचुरल आंखों से हम चीजों को नहीं देख सकते, पर ऐसे इतने सारे सिचुएशंस हमारी जिंदगी में आए हैं that we can tell for sure that they were angelic beings. Amen. एक 7 दिन की प्रार्थना में मैंने मेरे स्पिरिचुअल आंखों से एंजल को देखा था। उस समय पर एक बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी। That sister is here today with us in the meeting. And that 7 days of meeting, it was a very critical situation, and I was praying. First time in my spiritual eyes, I saw an angelic being, and that experience was a very supernatural experience. The eyes were, as if it is like fire. मैंने natural आंखों से नहीं देखा. I think it very clear. I have never seen an angelic being with my natural eyes. I have seen it when I was praying in my spirit. In the corner of the room, I saw Brother Lavin was with me. I saw how glorious the presence was. मैंने एक ही बार ऐसे देखा है, उसके बाद में अलग अलग
प्रेजेंस से परमेश्वर ने मुझे विजन्स दी है, बट नॉट दैट काइंड ऑफ अ विजन, वो एक ही बार मैंने देखा है, राइट, बट आई लॉन्ग टू सी दोज काइंड ऑफ थिंग्स मोर, और अधिक उस चीजों को हम देखना चाहते हैं. Why I'm saying this example? So that you're encouraged that the spiritual realms are so real. आत्मिक मंडली में जो सारी चीजें हैं वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड से भी ट्रू है. Amen. Hallelujah. Glory to God. So the angel of the Lord encamps all around those who fear him. जो परमेश्वर का भय रखते हैं उनकी सुरक्षता और उनका प्रोटेक्शन ये स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर उन्हें देते हैं. Isn't that powerful? That whenever you walk, whenever you go out and you come back, you are completely protected and heavily defended by God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So the word of God is so much strengthening that from now onwards, your faces are going to be radiant because you are going to focus on Yeshua. Hallelujah. कितने लोग जानते हैं sunflower, right? Sunflower is a very significant flower because it is so beautiful in its own way. सनफ्लावर का एक कैरेक्टर होता है, जहां से भी सनराइज होता है अपने मुख को सूर्यमुखी, isn't it? It turns its face to the sun. क्या करता है, जहां पर भी सनराइज होता है सनफ्लावर अपने आप को टर्न कर लेता है ताकि द सन रेस को वो रिसीव कर सके, इसीलिए उसका नाम सनफ्लावर दिया है. वो अट्रैक्ट करता है, राइट. सो उसी प्रकार जो परमेश्वर के जन यहोवा परमेश्वर के आने वाले जो प्रकाश की ओर अपने मुख को करते हैं वो रेडियंट बन जाते हैं, राइट. द ग्लोरी ऑफ गॉड मेक्स देयर फेस रेडियंट. हालेलुया. सो लेट्स ऑल बी लाइक दैट. आमेन. Even the nature teaches us how beautifully even the flowers understand the presence of God. The way God has created the planets, right? God has created the sun, the moon, and the stars. Even the nature knows how to, honor the things that the Lord God has made pertaining to this world. Amen. Thank you, Lord Jesus. So here we understand that all those who fear the Lord, they are completely defended, 100% protected because the angel of the Lord encamps. Let's all say this word together. सभी मिलकर इस वचन को कहेंगे. The angel of the Lord encamps me because I fear him. Amen. परमेश्वर के स्वर्गदूत मुझे एनकैम्प किए हुए हैं क्योंकि मैं परमेश्वर का भय रखने वाला संतान हूं. Amen. I am the child of the Most High God who fears the Lord. Glory to God. Thank you. Everyone are awake. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, precious Master. Thank you that your spirits are receptive. Glory to God. Amen. So let's move further. What the word of God is saying. The word of God is building us an invitation to share the joyful testimony. Now here, King David is giving an invitation to share a joyful testimony. Remember, where is he? Is he in a 5-star hotel? Or is he in a very much comfort suit? No. He is in a Adullam cave, hiding place. वहां पर राजा दाविद एक प्रस्ताव रख रहा है, इनविटेशन दे रहा है that he is sharing the joy of his testimony. He knows that he has escaped death and come to a rescue, and here is a time to glorify God. ऐसे हर पल को हमें खोजना है. एक बार मैं एक बहन से प्रार्थना नहीं कर रही थी, मैं बात कर रही थी, तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि ऐसे कोई भी चीज मेरी जिंदगी में नहीं हुई जहां पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूं, ऐसे मुझे कुछ याद ही नहीं आता. ऐसे उस व्यक्ति ने मुझसे कहा था. आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड. आई सेड just remember from today morning what all happened to you. Then that person started to tell. I went to bank में जाने के बाद वहां पर उस समय पर demonetization चल रहा था. In India demonetization was happening and all the currencies were to be submitted in the bank and all those old currencies were banned. So that person went to the bank and certain things were not happening there, but किसी व्यक्ति ने आकर उनकी मदद की और उनके लिए फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स था वो क्लियर हो गए और जो डीमोनेटाइजेशन के लिए उन्हें करेंसी देना था, जो कुछ होना था, वो सारा काम आसानी से हो गया, हालांकि वहां पर कुछ हिंड्रेंस आ रहे थे. सो दिस पर्सन स्टार्टेड टू टेल मी आई वेंट टू द बैंक और ये सब मेरे लिए हुआ. तो मैंने कहा ये तो परमेश्वर का फेवर है आपके लिए,
आपने अभी कहा राइट कि ऐसे कोई भी मुझे याद नहीं आता जहां पर परमेश्वर ने मेरी हेल्प की हो, पर आज ही आपके साथ इतना बड़ा एक ब्लेसिंग हुआ है, डिड यू रियलाइज दैट? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ ये ब्लेसिंग है क्या, मतलब मेनी पीपल डोंट नो दैट गॉड इज वर्किंग फॉर देम बट दे आर नॉट रियलाइजिंग इट। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ह्यूमन माइंड इतना ब्लॉक हो चुका है कि उसे परमेश्वर की अलौकिक चीजें समझने के लिए आत्मिक रीति से बढ़ना है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा हाँ ये पूरा काम तो मेरा हो गया, उसके बाद मैं घर आ गई और उसके बाद में ये चीजें भी मेरे साथ हुई, एंड दैट वाज रियली गुड। आई सेड गॉड इज विथ यू when you knew that things were not happening with you, when you knew for sure there is something hindering and all these things which happened in the entire day, would you not give glory to God? What are you waiting for? क्यों आपका मुख नहीं खुलता परमेश्वर की महिमा के लिए? क्यों आप ये नहीं सोचते कि आज सुबह उठने से ही मैं जीवित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ? कितने लोग आज हॉस्पिटल में किस परिस्थिति में हम नहीं जानते, परमेश्वर ने छत दिया है, एक सुंदर टेबल दिया जहां पर हम अच्छा भोजन खाते हैं परिवार के साथ है। क्या ये काफी नहीं है आपको परमेश्वर की महिमा देने के लिए? इस चीज से शुरुआत कीजिए। डोंट वेट एंड कंपेयर योर लाइफ विद समवन एल्स हुज challenges आर completely different to your challenge. That can never bring you to a position of blessing. Hallelujah. आपकी जिंदगी किसी और व्यक्ति की जिंदगी के साथ कभी भी कंपेयर नहीं की जा सकती। आज जिन चीजों को आपने आशीष के समान स्वीकार किया है, उस व्यक्ति के लिए वो कहीं पर भी इफेक्टिव नहीं हो सकती, बिकॉज दैट सिनारियो और दैट पोर्टल और दैट सिचुएशन और दैट पर्सन is only going to become a blessing for you because that is pertaining to you alone. Hallelujah. ये आपका व्यक्तिगत चीज के लिए परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। Hallelujah. So a person has to realize from the time I wake up till the time I sleep, I am completely covered under the grace of God. I'm completely under his protection. The angels of God has encamped me. Hallelujah. I'm not deprived. I am not lacking anything because the word of God is so powerful in my life. Amen. That is why King David is utilizing this opportunity to be in the cave of Adullam and inviting the people to come together as a agreement worship. Hallelujah. Glory to God. यहाँ पर King David is setting a very standard example. He's saying that, oh, taste and see that the Lord is good. Amen. राजा दावीद ये कह रहा है, चख कर देखो कि परमेश्वर कितना योग्य परमेश्वर है। क्या कोई व्यक्ति ऐसे कह सकता है? अब सोच कर देखिए, हाइडिंग प्लेस में ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आता है? यही होता है परमेश्वर का ट्रू अनॉइंटिंग, ट्रू ब्लेसिंग्स। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, 70-80 ईयर्स का हो जाऊंगा, तब मैं पूरा टेंशन फ्री हो जाऊंगा, तब जाकर मैं परमेश्वर की सुसमाचार को बांटूंगा। कई लोग बोलते हैं कि ये एक टेस्टिमनी बस हो जाए मेरी जिंदगी में, बस मेरा बच्चा डिग्री पास हो जाए, बस मेरी बेटी की शादी हो जाए, बस मेरा घर बांध के हो जाए, बस मुझे ये एक प्रमोशन मिल जाए। ये बस 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 करते हुए पता नहीं वो समय रहेगा या नहीं रहेगा। परमेश्वर कहता है आज जिस परिस्थिति में तुम हो, इस हाइडिंग केव में तुम हो, यू आर इन द अडुल्लाम केव, दैट इज द पॉइंट वेयर यू आर सपोज टू स्टार्ट प्रेजिंग हिम। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके शत्रु के समीप आपको मेज बिछाएंगे, उस समय पर तो आप प्रशंसा करोगे ही, आपको एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आज जब अदुल्लाम की गुहा में परमेश्वर आप पर कार्य कर रहा है, इस परिस्थिति को उसके महिमा के लिए बड़ा बड़ा कर इस्तेमाल कीजिए। यही वो सुंदर अवसर है, क्योंकि ये समय फिर से नहीं आएगा। इंसान की जिंदगी में विल्डरनेस का समय एक ही बार आता है, और उस मरुभूमि के अवस्था में जाते हुए वाचा की भूमि तक पहुंचने का जो समय होता है, वो एक ही बार परमेश्वर देता है, और वही आपको सक्षम बनाता है, ऐसा तैयार करता है कि आने वाले सारे युद्ध को आप ऐसे क्षण में आप उसमें जयवंत पा जाओगे। यू विल रिसीव विक्ट्रीज विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। यस, द आंसर्स कम इन सेकेंड्स बिलोवेड। प्रार्थना के उत्तर ये सेकेंड्स में आते हैं। यू डू नॉट नो इट बट वी नो इट।
परमेश्वर का वचन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में रिलीज होता है और उसी क्षण, उस सेकेंड में सारी चीजें बदल जाती है। आमेन, हालेलुया। ड्यूटरोनॉमी 2 में कल हमने एक वचन को पढ़ा था, उस वचन को भी पढ़ेंगे, so you will understand what I'm trying to say. So this period of wilderness is preparing you and your generation for something very powerful ahead. Hallelujah. So let's read verse 8 to 10 in Hindi. 8 से 10 तक हम हिंदी में पढ़ेंगे। Thank you Lord Jesus. हालेलुया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। Hallelujah. Glory to God. So सारे प्रश्नों का उत्तर इसी वचन में मिल गया। Glory to God, isn't that wonderful? When a person knows to praise God from the place of a cave, how much more should you and me? Hallelujah. क्या हम इससे अधिक प्रशंसा कर सकते हैं आज से? क्या हम हमारे सारे बोझ को परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में देकर उसके नाम की महिमा कर सकते? क्या हम ऐसी साक्षी बन सकते हैं जो कह सकता है, चख कर देखो परमेश्वर को, वो भला है। Hallelujah. So here the word of God is saying that all those who fear, they will never suffer. वो कभी घटी में नहीं रहेंगे। Hallelujah, glory to God. मैंने ये बहुत नजदीक से देखा इस चीज को। Hallelujah. ये सिर्फ वचन में नहीं, I have seen this word very closely. Amen. Sometimes God is doing things in a secret. परमेश्वर हर चीज को एक्सपोज करके नहीं करते। कोई चीजें जो एक्सपोज हो जाती है वही हमको नजर आती है, और जो बैकग्राउंड में होती रहती है, जो बहुत पावरफुल होती है, कई बार हम उसे नहीं देख पाते। Amen, hallelujah. So there are certain things where this word is strengthening us today. It says that the young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. सारी भली वस्तुओं से आप कभी भी वंचित नहीं रहोगे। Amen. ऐसे इतने सारे टेस्टिमनीज है, इतने सारे गवाहियां है कि अगर मैं उसको आज बांटने के लिए बैठ जाऊं तो टाइम का कंस्टेंट है, सो आई वुड कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट द वर्ड। Hallelujah. But I can testify that being in the presence of God and serving the Most High God, this is our testimony. We have lacked not anything in our life. कभी भी हमें किसी चीज की कमी घटी नहीं हुई है, because the Lord is my provider. The Lord Jehovah Jireh is my provider. Amen. कहीं पर भी कोई कमी घटी नहीं हुई। कई बार हम जब सोचते थे कि ये चीज हमें मिल जाए या हो जाए, कई बार हम हमारे फिजिकल क्षमता से उस चीज को लेने के लिए कोशिश करते थे, पर परमेश्वर उसे हॉल्ट करते थे, पॉज करते थे। वो आशीष हमें उस समय पर नहीं मिलती थी, पर जब वो आशीष हमें मिली, वो हमारे कॉम्प्रीहेंड से भी बढ़कर मिली। Hallelujah. Glory to God. When we try to do it with our capacity, trying to minimize it and just compromise करते हुए कुछ चीजें करना चाह रहे थे, परमेश्वर ने उसे होने नहीं दी, because God's appointed time was for the now. And when God fulfilled it, it was extraordinary, where we couldn't do it with our own capacity. Hallelujah. Glory to God. So all those who fear the Lord, they shall not lack any good thing. This shall be your portion, beloved. This is your portion as the children of the Most High God. And you shall come up with these great testimonies to glorify God. Amen. Thank you, Lord Jesus. From verses 11 to 14, teaching the people of God. Now, see, this word is so powerful, beloved. I am so amazed to see this word. First, King David is coming and calling people of God to praise. सबसे पहले अदुल्लाम गुफा में वो लोगों को बुला रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर की प्रशंसा करो। राइट। सेकेंड पार्ट में हमने देखा एक साक्षी को बांट रहा है, किस प्रकार परमेश्वर ने उसे इस अवस्था में लाकर भी एक टेस्टिमनी के समान रखा है। थर्ड चीज में हम देखते हैं लोगों को इन्विटेशन दे रहा है कि चक्कर देखो कि परमेश्वर भला है। चौथे पार्ट में हम देखते हैं
लोगों को इस चीज से वो सीख दे रहा है, ही इज टीचिंग देम। Isn't that a very unique thing? कितना अचंभित करता है ना इस चरित्र को पढ़ने में भी। इसलिए मैंने कहा राजा दाविद का एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर है बाइबल में, कि उसके द्वारा पाप भी इतने हाई लेवल के हुए हैं और इतना अधिक टूटा हुआ व्यक्ति भी है कि परमेश्वर से ऐसे व्यक्ति के समान कहते हैं किंग डेविड हु इज नेक्स्ट टू माय हार्ट, मेरे अंतःकरण को जानने वाला व्यक्ति, ये टाइटल उसे मिला है। एंड इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, इजंट इट? हालेलुया। सो ऑलवेज इट इज राइटफुल टू गो क्लोजर टू गॉड। हमने एक अग्रीमेंट किया है घर में, कभी भी नेगेटिव वॉइसेस हमें भी आते हैं, हम उससे वंचित नहीं है। वी आर नॉट exempted from the attacks of the enemy, rather more spiritual attacks do happen, but we have come to an agreement। जैसे ऐसे अटैक्स आते हैं या कानों में नेगेटिव वॉइसेस आते हैं, इमीडिएटली हमें परमेश्वर की ओर भागना है, और किस व्यक्ति के खिलाफ आते हैं उसी व्यक्ति को ज्यादा प्यार जताना है। ये करने में मुश्किल होता है शुरुआत में, बट डेलिबरेटली हम ये करते हैं, राइट? वी हैव स्टार्टेड टू प्रैक्टिस दैट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मन में किसी और बहन के बारे में नेगेटिव वॉइसेस डालना, तो मैं क्या करूंगी, उस बहन से दूर रहने की कोशिश करूंगी, क्योंकि शैतान ने एक बीज को मेरे मन में डाला है, या किसी भाई के बारे में मेरे मन में कुछ डाला है, अपने परिवार के जन के बारे में। उस समय पर हमें क्या करना है, उसी व्यक्ति के लिए अधिक प्यार बढ़ाना है। तो शत्रु का जो प्लान है या एनिमी की जो स्ट्रैटेजीज है वो वहीं पर फेल हो जाती है, क्योंकि वही तो वो चाहता है कि आप सेविकाई में ना बढ़े, आप वचन ना पढ़े, आप परमेश्वर से दूर हो जाए, हर शैतान के झूठ को अपना ले और अपने परिवार के बीच ही दुश्मन को जैसे बर्ताव देते हैं, एनिमिटी करते, वैसे बन जाए। यही तो स्ट्रैटेजी है। इसी को ब्रेक करने के लिए जो नेगेटिव वॉइसेस हमारे कानों में जो वो बोलता रहता है दिन में, उसके खिलाफ हमें काउंटर अटैक करना है। उस चीज को ही करना है जो वो नेगेटिव चीजें हमें करने के लिए कहता है, उसके विरुद्ध ही हमें करना है। When we start doing it, what we are doing, we are becoming victorious. King David is taking this opportunity to teach people. Wow, isn't that wonderful? Glorious, glory to God, isn't that powerful? Amen. कई बार हम सोचते हैं ना कि हम मिनिस्टर ऑफ गॉड बन जाए, हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए, तब जाकर हम परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताएंगे। पर परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं इस्तेमाल करते। वचन ये कहता है परमेश्वर किन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो हियर इट सेज दैट ही इज टीचिंग द पीपल ऑफ गॉड to live in the fear of the Lord. Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Who is the man who desires life and loves many days that he may see good? Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Hallelujah. राजा दावीद ये कह रहा है, हर उस गलत चीज से भागो, दूर हो जाओ, ताकि आप क्या बनने पाओ, आपकी जिंदगी की जो डेज है वो लंबी हो जाए और हर आशीष को आप पाओ। Seek peace and pursue it. Hallelujah. Isn't that word powerful? Glory to God. Verse 15 to 16, living under the watchful eye of God. The eyes of the Lord are on the righteous. Hallelujah. Yesterday when I was reading the Bible, Brother Lavin told me, do things rightfully and see that, मतलब डांट कर कह रहे थे कि देखो परमेश्वर की आंख तुम्हें देख रही है, मैनिपुलेट करके बात मत करो, ऐसे डांट रहे थे मुझे। तो मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर की आंख मुझे देख रही है, यही तो मैं चाहती हूँ। That's what I said. I am happy that the eyes of the Lord is watching. Let this be your camera over you. परमेश्वर की आंख हमेशा से आप पर है, ये होना चाहिए, क्योंकि वचन ये कहता है, the word of God is saying the eyes of the Lord are on the righteous. अब सोच कर देखिए कि एक चोर है या एक दुष्ट व्यक्ति है, वो इतने सारे पाप के काम करता है, कोई क्यों नहीं उसे जाकर रोकता? Isn't it? वो दुष्ट है, वो गलत कार्य कर रहा है, क्योंकि उसने आपको बंद कर लिया है परमेश्वर के करेक्शन के लिए। और जो एक नीति मत्ता के साथ जो एक जिंदगी गुजारता है, जो एक न्यायी मनुष्य है, जो राइचस है, परमेश्वर की आंखें उस पर ही है। ये डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये है, परमेश्वर चाहते हैं कि ये जो राइचस मनुष्य है, जो मुझे जानता है, मेरे नाम को
ऊंचा उठाता है, ये कभी भी स्लिप ना हो सके, ये कभी ना गिरने पाए। इसीलिए ऐसे व्यक्ति पर ही परमेश्वर की नजर टिकी हुई होती है। Hallelujah. Because the righteous man has kept his heart open for correction, but the wicked man has closed it. Hallelujah. How many of you are understanding this? We should be always under the vigilance of the Lord's eye. परमेश्वर के आंखों के कैमरा के अधीन हमें होना है, करेक्शन के लिए हमें ओपन होना है। Hallelujah. The word of God is saying that the eyes of the Lord are on the righteous. नहीं कहता है परमेश्वर की आंखें हमेशा से ही उस नीतिमान व्यक्ति पे होती है ताकि वो उसे बचा सके, क्योंकि बहुत से चांसेस है कि जो राइचस है वो स्लिप हो सकता है, वो पाप कर सकता है, पर परमेश्वर की आंखें उस पर होने के कारण वो प्रोटेक्टेड है। गॉड इज गाइडिंग दैट पर्सन, प्रोटेक्टिंग दैट पर्सन, दैट बिकॉज ही इज ओपन to every instruction from God. He wants to be alerted by God. He wants to take precaution. Hallelujah. Glory to God. So, and his ears are open to their cry. The face of the Lord is against those who do evil. देखा, परमेश्वर अपने मुख को मोड़ लेता है किन लोगों से? दुष्ट लोगों से। Hallelujah. God will not keep his plan, agenda, his purposes for the wicked people because he knows they are not in his plan anymore. Amen. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. कल हमने भजन संहिता पढ़ा था, 73 पढ़ा था, इतना पावरफुल वर्ड है, right? So that word was talking about all the emotions in the heart. Why do the wicked prosper? Why the wicked are more better than the believers? The answer is in that word itself. The wicked are only preparing themselves to perish. एक दुष्ट व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता, जिसको विकेड कहा जाता है बाइबल में, वह अपने आप की तैयारी नाश की ओर कर रहा है। दूसरा ऑप्शन उनके लिए नहीं है, क्योंकि उद्धार से अपने आप को वो काफी दूर कर चुके हैं। हालेलुया। द फेस ऑफ द लॉर्ड इज अगेंस्ट दोज हू डू इवल, टू कट ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ देम फ्रॉम द अर्थ। उनकी रिमेम्बरेंस भी इस अर्थ से निकाल दी जाती है, ये उनका पोषण है। हालेलुया। Glory to God. 17 to 18, God the helper of the humble, the righteous cry out on the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to those who have a broken heart. Clap for yourself, everybody. अपने आप के लिए क्लैप कीजिए, क्योंकि आप ये वचन के लिए क्वालिफाई होते हैं। हालेलुया। मैं तो क्वालिफाई होती हूँ इस वचन के लिए। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो अपने आप के लिए clap कीजिएगा। I'm pasting it on the chat box. Hallelujah. So the righteous, okay, the type नहीं हुआ यहाँ पर। The righteous cry out and the Lord hears. कौन है ये righteous? How do you know that you come under this group of righteousness? Because when you have rejected your own filthy rag, which is so-called righteousness of the world, and accepted the righteousness of Christ, the same day you qualify to be called right in the sight of God, right standing with God because of the ransom which is being paid for your life to the finished work on the cross of Calvary. Hallelujah. So here the Lord is near. The Lord is near to Sister Sarah. So we qualify. We can say strongly, the Lord is near to me. I do not know about you, but I know for myself for sure, the Lord is near to me because I am a broken-hearted person. Amen. I qualify more than you qualify. The more broken I am, the more I qualify to the presence of God. Amen. Right? A great man of God whom we follow most of the time, he always sings this song, break me, break me. मुझे तोड़िए परमेश्वर. Brokenness is only the place where you can see the glorious presence of God. जो व्यक्ति बीमार होता है उसको डॉक्टर की जरूरत है। जिसका अंतःकरण टूटा होता है वही जानता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है। हालेलुया। जो दुनिया की हर चीज से परफेक्शन की ओर से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए इस चीज की जरूरत नहीं। हालेलुया। वचन कहता है, द लॉर्ड इज नियर टू दोज हु हैव ब्रोकन हार्ट एंड सेव सच एज हु हैव अ कॉन्ट्राइट स्पिरिट। इस चीज को हमेशा हम अपने आप के लिए हमें कायम करना है। यही वो चीज है जो परमेश्वर के अलौकिक प्रेम को हमारे तक पहुंचाती है। We'll read this only word in Hindi. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus.
17 to 18 in Hindi. Thank you, Lord Jesus. Glory to God. धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। कहीं पर भी वचन नहीं कहता यहोवा जो सब लोग उनके वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में परफेक्ट है, गुड है, सो कॉल्ड विकेट, उनकी कुछ सहायता करता है, राइट? The word is very specific. God is not interested in their life anymore. Let this be very clear to you. हम उनको देखकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उनके लिए रोना चाहिए। परमेश्वर कहीं ना कहीं उनके अंतःकरण को बदलकर उन्हें उद्धार मिले, ऐसी प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। परमेश्वर उनके लोकेट देम इन योर मर्सी लॉर्ड, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। जो कोई भी लोग हमारे अभिषेक के विरुद्ध या परमेश्वर ने जो बुलाहट हमें दी उसके विरुद्ध अगर बात करते हैं, जो हमें पता चलती है, आत्मा में पता चलती है, व्यक्तिगत रूप से पता चलती है, तब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप आपके अनुग्रह में, आपकी करुणा में उन्हें लोकेट कीजिए, क्योंकि यही क्वालिफाई करता है एक व्यक्ति को परमेश्वर की योजना में सफलता से कार्य करने के लिए और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक पात्र के समान वो उपयोग में लाया जा सके। Hallelujah, glory to God. So I am very happy to call myself as a broken hearted and a contrite spirit. And I want to continue to be like this for his kingdom. Because if I commit myself to the worldly things and I find pleasure to fulfill my requirements from the worldly things, this brokenness will be removed. I might become complacent. Complacent व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य के उपयोग में नहीं आ सकता, because he is completely full. उसका जो प्रोविजन का सोर्स है किसी और जगह से आ रहा है. So he would not consider himself to be relying on God. And for God, such people are of no use. Amen. वचन ये कहता है, मैंने नहीं लिखा है, बाइबल में लिखा है. Hallelujah. So broken heart. The broken heart should always be your character. Hallelujah. God is very near. God is found when you are in Adullam cave. Hallelujah. हमेशा सोच कर देखिए, आपके कंफर्ट जोन में आप परमेश्वर को याद भी नहीं करोगे. It is very natural. That is how man is. जब कभी भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप टूटे हुए अंतःकरण से ही ज्यादा परमेश्वर को आप क्या नियर क्लोजनेस आपको मिल सकता है. Amen. Not when you are in a very good mood or celebrating. Many few people do that, right? जब आप परमेश्वर को महिमा देते हो अच्छी चीजों के लिए, सच्चे परमेश्वर के आराधक वो करते हैं. बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल पीपल. जब अच्छी चीजें हो जाती है तो परमेश्वर का नाम लेने के लिए टाइम नहीं होता. जब वो अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि उपवास प्रार्थना में रहते हैं, वो समय को भूल जाते हैं, विल्डरनेस का समय. पर हम जो मसीह लोग हैं, हमें इस विल्डरनेस के समय को बहुत महत्व देना है. बिकॉज दिस इज द रियल कैरेक्टर. यही वो चीज है जो आपको आगे चल के आपका फाउंडेशन तैयार करने वाली है. Amen. So this brokenness of your heart and the contrite spirit. आप सोच कर देखिए, अगर एक व्यक्ति में brokenness ना हो, contrite spirit ना हो, तो वो दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता. Because he is in his own comfort zone. How would he realize the pain and suffering of other person? God wants that person to realize. Put your leg in other person's shoe and pray. Intercession. कैसे करोगे आप? Hallelujah. So this kind of a situation, the Bible says Jesus Christ moved with compassion. परमेश्वर यीशु मसीह उनके हृदय में compassion था. Then only he went and healed. Otherwise things would not happen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Let's move further. So we are going 19 to 22. God's care for his righteous one. So many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Hallelujah. He guards all his bones. Not one of them is broken. Evil shall slay the wicked, and those who hate the righteous shall be condemned. The Lord redeems the soul of his servants, and none of those who trust in him shall be condemned. Hallelujah. Let's read this last verses 19 to 22 in Hindi. And this is a very powerful word, right? Amen.
धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूट नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैठेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। या हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्या कहता है वचन? मेनी आर द अफ्लिक्शंस ऑफ द राइचस। मतलब कल का वचन हमने देखा क्यों परमेश्वर ऐसे होता है, वचन में वही उत्तर दिया गया है। देयर आर अफ्लिक्शंस इन अ राइचस लाइफ, दैट इज द प्रूफ दैट यू आर राइचस। हालेलुया। जो पाप करता है उसको कोई टैग देने की जरूरत नहीं कि तो पापी हो, तो ऑलरेडी है। और जो नीतिमान होता है वो कठिन परिस्थिति से होकर गुजरता है पर अपने आप को पाप से दूर रखता है। You go through afflictions, but you are so much protected that God has protected you, that you will not sin. You will not go against God. Hallelujah. Afflictions are the portion of righteous people, but the Lord delivers him out of all of them. He would not allow you to continue into afflictions any longer, beloved. That is not the will of God. But a righteous man is always identified by his afflictions. The affliction shows that you are in the plan of God. The afflictions and the brokenness of your heart, the contrite spirit qualifies you to be delivered from all those things. Hallelujah. How many of you are understanding this word? How many of you are receiving in your spirit? Lord, I thank you for that afflictions. Have you ever taken that time to say, Lord, these afflictions have only brought me to salvation. This brokenness has brought me to the plan and purpose of God. If I had continued my work in corporate, I would have been in a very different position, earning lakhs and rupees every month. But the Lord disconnected me from that, and I was very happy to do it. आज मैं दुनिया की जिंदगी अगर जीती तो मैं कुछ और स्थान पर होती, फाइनेंशियली किसी और परिस्थिति में होती, एक पोजीशन में होती जो दुनिया के अनुसार योग्य है। पर परमेश्वर ने 2015 में मुझे उन सारी चीजों से डिस्कनेक्ट कर दिया। परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य कर रहे थे। God took us through many challenges and showed us that relying on God is the immense blessing. Amen. Hallelujah. Glory to God. So the word of God is saying that afflictions qualifies you. Your brokenness qualifies you. Amen. Celebrate your afflictions because the world would not realize. They might laugh on you. That is what they are meant to. ये सारे दौर से हम गुजर चुके हैं, इसीलिए कह पा रहे हैं। I cannot tell you anything which I have not gone through. I can only talk about what we have gone through. Amen. Afflictions are is a time for a believer to celebrate rather. Hallelujah. The brokenness is a place where you have the nearness of God. आप कितना भी दाम देकर भी इस इंटीमेट रिलेशनशिप को नहीं पा सकते। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं पा सकते, अन्य भाषाओं के दान को नहीं पा सकते। ग्लोरी टू गॉड। कई बार मैं सोचकर दुखी होती थी, ओ लॉर्ड ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये क्यों ऐसा है। एंड द लॉर्ड यूज्ड टू क्वेश्चन मी, तुम जो है होली स्पिरिट बैप्टाइज्ड हो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करती हो, क्या उस व्यक्ति को ये दान मिला है? क्या इस व्यक्ति को उद्धार मिला है? क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम कितने प्रिविलेज्ड है, हम कितने ब्लेस्ड है? आज ये वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से कंपैरिजन किया जाता है जिसे परमेश्वर तुच्छ मानते हैं। God is just neglecting those standards. God is not even considering them because we should know who we are in the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. Isn't that powerful? Thank you, Lord Jesus. So the word of God is saying that He guards all His bones. None of them will be broken. Today, God is taking the responsibility of your family, your children, your finances, your health, that none of your bones will be broken. None of the diseases will stay in your body. You will be strengthened, though you are facing afflictions, and those afflictions are the sign of a righteous man. These are for the Lord to deliver you from all of them. Hallelujah. Glory to God.
So this word I release over your life, and I declare and decree, as King David utilized the situation of the Adullam cave to exalt and magnify the King of Kings and Lord of Lord Yeshua, so shall be your portion. You may be going through the same trials and tribulations. Your challenges may be different from mine. But today I decide to utilize this situation of a hiding place. Yes, a beautiful song is that you are my hiding place. तू मेरा शरण स्थान है. हालेलुया. इस शरण स्थान के परिस्थिति को परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए अधिक इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये परिस्थिति फिर से नहीं आएगी. Amen. The word of God says in Hebrew 3 verse 12 to 15. Sister Monica, can you read this word? हिब्रू की किताब से 12वां तीसरा अध्याय 12 से 15. Amen. Yes. The book of Hebrews chapter 3 verses 12 to 15 in Hindi, and we will complete the session. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. Meanwhile, Sister Monica is finding the scriptures. I'll read it for you in English. Beware, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, but exhort one another daily while it is called today, lest any of be hardened through the deceitfulness of sin. For we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end, while it is said, today, if you will hear his voice, do not harden your heart as in the rebellion. Hallelujah. Read this in Hindi. We will conclude it. Yes. Amen. Thank you. हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने वाले के समय किया था। हालेलुया. Amen. Hallelujah. इसीलिए I don't want you to lose what the Lord God is speaking to you. मुझे called to serve the master. Hallelujah. कई बार ऐसे होता है कि आज आप जिस सेविकाएं से जुड़े, आप लोग ऑनलाइन लॉग इन करते हो, परमेश्वर किसी और लोगों को तैयार करेंगे. दैट इज गोइंग टू हैपन. बट आपके लिए जो योजना है उससे आप बाहर नहीं होना चाहिए. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसलिए वचन कहता है कि अगर वचन का जो प्रचार होना है या वचन सुनना है, ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शैतान जो है किसी समय पर भी आपको उखाड़ सकता है. क्योंकि वचन कहता है फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. वचन ये कहता है अगर आप बीवेयर कहा गया है, अलर्ट, सावधान हो जाओ. कल ब्रदर लवीन इस वचन को पढ़ रहे थे जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो Psalms 34 और कल के दिए गए वचन और ये वचन सारे हमारे लिए एक मैसेज के समान कार्य कर रहे थे. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, राइट? परमेश्वर की सेविकाएं को कम मत जानिएगा. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ही इज टेलिंग बीवेयर ब्रदरन लीस्ट देयर बी एनी ऑफ यू इवल हार्ट ऑफ अनबिलीव. इवल हार्ट ये परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शत्रु का एक बीज होता है. अनबिलीफ आना, परमेश्वर के वचन से दूर होना, ऐसे व्यक्तियों को संभालने के लिए परमेश्वर सेविकाएं देते. क्यों परमेश्वर कहते हैं मेरे आलय में आओ, कम टू माई सैंक्चुरी, कम टू द फेलोशिप, कम टू द कांग्रेगेशन. अगर मैं अकेली पड़ जाऊं तो परमेश्वर की योजना से मैं दूर जाने के काफी चांसेस होते हैं. इसीलिए हम पिंग करते हैं ग्रुप में, राइट? वी पुट द लिंक एंड वी एनकरेज, वी कीप ऑन कॉलिंग यू पीपल, राइट? मेनी पीपल heed to the voice of God. यहाँ पर लिखा है some people listen, for we have become partakers of Christ and we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. ये कोई लोग जान चुके हैं और वो टाइम पे लॉग इन करते हैं. हम इसलिए आपको एनकरेज करते हैं कि मैसेजेस को मिस मत कीजिए, ताकि पूरा हफ्ता जो एक पोर्टल ओपन होता है परमेश्वर के आशीष के लिए रविवार के समय पर, उसी तरह शत्रु की ओर से भी पोर्टल्स होते हैं. उन सारे
चीज को टैकल करने के लिए हमें अपने आप को फ्यूल करना है. वी नीड टू रिसीव होली स्पिरिट. आमेन, हालेलुया. नहीं तो नेगेटिव वॉइसेस के चपेट में जाना बहुत मुश्किल काम नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो हो जाता है. Sin is like a roaring lion. Devil is like a roaring lion. So we should believe this word. Unbelief is something which can easily penetrate a man. But when you come in fellowship, संगति की प्रार्थना, agreement, online connect होना, कलीसिया से जुड़ना. कल भी मैंने कहा अगर आप किसी लोकल कलीसिया से कनेक्टेड नहीं हो तो प्लीज ऑनलाइन जुड़िए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में रहिए, परमेश्वर के देह के साथ कार्य करिए, तभी आप प्रोटेक्टेड रहोगे. हालेलुया. लास्ट वचन which is a blessing for you. The word of God says from the book of Deuteronomy chapter 2 verse 24, it says that, rise, take your journey and cross over river Arnon. Look, I have given it into your hand. Sihon the Amorite king of Heshbon and his land, began to possess it and engage him in battle. This day I will begin to put the dread and fear of you upon the nations under the whole heaven. And you shall hear the report of you, and you shall tremble and be in anguish because of you. And they shall tremble. Sorry. You shall hear the report of you, and shall tremble and be in anguish because of you. Hallelujah. Deuteronomy chapter 2, verses 24 and 25. Sister, this word has blessed you. Yes. Deuteronomy chapter 2, verse 24 to 25. So this is happening in the spiritual realm. All those people are standing against you. They will be fearful because the dread of your life will be upon them. Read this word in Hindi. Yes. हालेलुया. अब तुम लोग उठकर कूच करो और अनान के नाले के पार चलो. सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा अमोरी सिहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ. इसीलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो. और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा, और वह तेरा समाचार पाकर तेरे डेरे के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे. हालेलुया. Hallelujah. So यहाँ पर शियोन द एमोराइट किंग ऑफ हेशबोन, इस जगह पर आपके विरुद्ध क्या चीज कार्य करे उसका नाम डालकर प्रार्थना कीजिए. यहाँ पर कह रहा है वचन, begin to possess it, engage him in battle. युद्ध में उसको एंगेज कीजिए. अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू कीजिए. एंगेज योर वॉरफेयर प्रेयर. बढ़ाइए अपनी प्रार्थना को. जब कोई भी व्यक्ति आपकी ओर देखेगा तो कहेगा भयभीत होकर, क्योंकि आप में वो जो अभिषेक है उसे देखकर वो कांपेगा, कहेगा ये तो परमेश्वर की सेविकाई है. The anointing that I carry, one finger shall turn the tables. That should be the power in your life. And I know this is working in my life and it shall work in your life also. So they will dread and fear you. Amen. So this word, it says, rise. Don't sit on that bench and be crying and become a victim. Rise and take your journey. Engage that enemy in battle. This is the portion for you. अदुल्लाम की गुफा में आपने प्रशंसा की, आराधना की, स्तुति की, इतनी सारी सीख ली. अब समय आता है राजा दावीद को सिंहासन पर विराजमान होकर इजरायली प्रजा पर राज करने का समय. उसी समय के लिए आप तैयार किए जाने वाले हो. The time is for you to rise and engage the enemy in the battle, because after you engage the enemy in the battle, the Lord is going to make you people a place where they will be dreadful of you. आपको देखकर वो भयभीत होने वाले हैं. ये मैं इसलिए कह रही हूँ, कल परमेश्वर ने वचन मुझे दिया और ये भविष्यवाणी हमारे लिए की जा चुकी है. ये मैं आप पर रिलीज करती हूँ. हालेलुया. सिंपली आई एम नॉट सेइंग दिस वर्ड. आमेन. ये भविष्यवाणी हम पर की जा चुकी है. परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया हुआ है. ये वचन मैं आप पर रिलीज करती हूँ. आपके फिजिकल स्ट्रक्चर को देखकर लोग नहीं डरने वाले, बल्कि जो परमेश्वर आपके अंदर है उसको देखकर शैतान का हर कार्य भयभीत होने वाला. इट इज गोइंग टू ट्रेम्बल, सेज द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. Glory to God. So let's all glorify God and pray God and thank God and worship his goodness. Amen. I would ask Sister Monica to pray comprising all the scriptures, right?
ये सारे जो वचन हमने आज स्वीकार किए. सिस्टर मोनिका is going to pray, and meanwhile after she prays we will have a worship song. Amen. Sister Monica will pray because I am led in my spirit to ask her to pray. As she's praying, let's all connect to the Holy Spirit. Glory to God. Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन कि आपकी पाक पवित्र हजूर में पिता, जो आपके द्वारा खुदावन पवित्र आत्मा जी हमें जो वचन दिए गए हमारी स्पिरिट के लिए पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर। जैसे आपने हमें परमपिता परमेश्वर हर एक चीज के ऊपर पिता परमपिता परमेश्वर विजय हासिल करने के लिए जो वचन दिए उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और पिता, आपने हमें खुदावन उस करेज को और उस साहस को परमपिता परमेश्वर दिया है कि हम उस वचनों को अपनी लाइफ में डिक्लेयर करके परमपिता परमेश्वर हर एक वो चीज को परमपिता परमेश्वर हासिल करे जो खुदावन आपने हमारे लिए रखी है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके उन वचनों का जो पिता आपने हमें दिया, ताकि हम अपनी स्पिरिट में, हम अपनी फिजिकल परमपिता स्ट्रेंथ में, और खुदावन जो हमारे आसपास की सारी मुसीबतें हैं परमपिता परमेश्वर, हम उस पे परमपिता परमेश्वर विजय हासिल करके आगे चले, आपके नाम को ग्लोरीफाई करें मेरे परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, जो भी वचन आज हमने अपने स्पिरिट में ग्रहण किए हैं पिता, हम उस पे आपके परमपिता परमेश्वर वचनों पे और ज्यादा मनन करें मेरे परमपिता परमेश्वर। और खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर इस हर एक चीज के लिए, इस टाइम के लिए पिता परमेश्वर जो आपकी हजूरी में हम सब लोगों ने बिताया। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर सारा के लिए भी खुदावन, जिनका मुख आपने हमें परमपिता इस वचनों को पहुंचाने के लिए यूज किया। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। Amen. Third day of our fasting and prayer. Amen. Combined with the Sunday service. So we will be completing the evening, and people who are not from India, for them the day will start yet. Amen. तो आपका और third day complete होना है fasting and prayer का. So be in the fasting and prayer as you will. So Adonai Kingdom Planters is into investing the spiritual things in your life, and indirectly we are preparing ourselves to fulfill the vision and the ministry the Lord God has given us. Amen. So let's all close our eyes and thank God for this wonderful time and session that God gave us today, and worship and honor Him, continuing, not closing this session and going back to the old ways, but continuing from here. The Word of God says, rise, take your journey, cross over that river, and engage the enemy in the battle. And as the time you have spent in the Adullam cave, that was a preparation time for you to praise and magnify the name of the Lord, that your name shall bring dread and fear among your enemies. Thank you, precious Master, for this time and our Lord Jesus. We glorify your name, Lord Father. We exalt your name, Master. We thank you for this wonderful word, Master, and for the presence of the Holy Spirit that has built us, Master, and made us the person you want us to be. Yes, Master, you are near to the broken and the contrite spirit, Master. The broken heart and the contrite spirit is the very feasible place, Master, where the presence of God is near. Abba, Father, we thank you for this lives, Master. Thank you, Lord, that you have called us righteous, Master. Yes, Lord, we glorify your name. We exalt your name, Master. And yes, Lord, our lives is to arise from that situation and march forward and engage the enemy in the battle, so that when our name is being uttered, it's not that the name, the biological name that we carry, but the name that is registered in the spiritual name, in the realms, Master. Every person who carries that significant name which has been registered in the spirits, Master, that name shall bring dread over people's life. It shall bring the fear of God over their life, Master. Thank you, Lord Jesus. We bless your people, Master. We thank you for their lives, Lord Father. We thank you for all that they have been doing for you, Master. Even that they have been taking this time to be in the part of this fasting and prayer, Master. All that they are laboring for your kingdom, Master. May them receive 100-fold harvest in everything that they do, Lord Jesus. All the glory and honor to the precious and matchless name of our Lord and our Savior, Yeshua HaMashiach, we ask and give. Amen. Hallelujah.
Glory to God.